The next question, how does Sophie include her brother Joff in her fantasy for future? In her fantasy for future, how did she include? कैसे उसने अपने भविष्य की कल्पना में अपने भाई जॉफ को जोड़ लिया? You remember what did she feel? She dreamt of Joff riding a motorcycle, wearing a jacket, and then imagining that she'll be sitting at the back and he'll be riding the motorbike. Through that, he felt Joff to be included in the story. और साथ ही साथ she also includes her brother in the sense that she tells the story to her brother. She tells the story to her brother that she met in Roy's shop a famous footballer called Danny Casey, and that he asked him something. In response, she replied that, well, I want autograph. Then what did Cassie say? If you care to meet me next week, I will give the autograph. ये सारी बातें, all these things, Sophie told Joff, and by doing so, she included Joff in that story background. The next question, which country did Danny Casey play for? Very simple question. Which country did Danny Casey play for? किस कंट्री के लिए खेलता था? He played for Ireland. And he played also for United clubs and all that. Question number 8. Why didn't Sophie want Jenny to know about her story with Danny? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेनी को वो बात मालूम पड़े जो उसने कैसी के बारे में जॉफ को बताया था? What is the answer? The word is gawky. You remember? She used somewhere that because he felt that she was gawky. और गॉकी का मतलब क्या होता है? फूहड़. तो ऐसा वर्ड लेके आपको इसका आंसर बनाना है, where you have to describe that yes, she was not the kind who would keep things to herself. She would tell it to everyone. And then she feared that once it is told to people in the neighborhood, the people in the neighborhood will all gather around her house, will ask her father, what is all this story going about? Being spread by Sophie. Father will get angry and mother will get all the more angry. That is what is the answer to this question. Next. Sophie and Jenny were classmates and also friends. What was the difference between these that show up in the story? Now, this story, this question makes it necessary that we have understood the character, understanding the character. So the question is कि सोफी और जेंसी मित्र थे, सहपाठी थे, उन दोनों के व्यवहार में इस कहानी में क्या अंतर है? So you have to answer. Number 1, Sophie lives in the world of dreams. Fantasizing. Fantasy means kalpana. She lives in the world of dreams. Make-believe world. Thinks big things, which is beyond approach, which is not possible. On the other hand, Jency is very practical. She is down to earth. Very realistic. Another difference, Jency was somewhat very ambitious. Sophie was very ambitious.
बहुत ज़्यादा उसकी बड़ी इच्छाएं थीं. Jency was very practical. Jency was very down to earth, very practical. The third difference, Sophie was very kind of talkative, very chirpy. Chirpy, chirpy, talkative. On the other hand, Jency was a quiet kind of girl. Jency was a quiet kind of girl. Number 4. Sophie and Jency both came from middle class. Sophie was not bothered about this background. She felt money comes easily. She will have enough money to start a boutique and to be actress and so on, so forth. Both are very, very costly affair. On the other hand, Jency, she also came from middle class, but she was, very sensible. She was very sensible, so sensible that she even asked Sophie, no shop will take you. She told Sophie, no shop will take you immediately for a job. How can you think that you will be suddenly made manager? That means you have to undergo proper stage. You have to be trained. You have to learn the art of running a shop. And so, in other words, Jency was very down to earth. Jency was very practical. Next question. Did Sophie really meet Danny Casey? What do you think? After having read the whole story, understood the whole story, what do you think? Did she really meet Danny Casey? Very short answer. Your understanding must say no. Then how this story is all about? The answer is no. Sophie was only dreaming. Sophie was only fantasizing. The correct word will be fantasizing. Sophie being a very young girl at tender age. Like any other children of her age, she was also fantasizing, imagining. Next question. Which was the only occasion when she saw Danny in person? Now, in person means what? व्यक्तिगत रूप से. Which was the only occasion? Occasion माने मौका. When Sophie saw Danny in person. The answer is the football stadium, where, like a pilgrimage, the whole family would go to the stadium to watch football match, where Irish team will play, and as a part of Irish team, Danny Casey would be there. So, last Saturday, she saw Danny Casey in the stadium. That was the only time. That's the answer. Please note that I am not going to tell you each and every word. I am only going to pick up those words which I feel will be of use to you in your day-to-day life. मैं केवल वही शब्दों के अर्थ, कठिन अर्थ आपको यहाँ पर बताऊंगा जिनके उपयोग की संभावना आपके द्वारा इस उम्र में ज़्यादा है, जिसके आसपास, जो आपके आसपास के शब्द हैं. So let's start with this. First is butique, जो शुरू में हमने देखा, फैशनदार कपड़ों की दुकान, और इसका उच्चारण देखिए, उच्चारण इज बुटीक, BOUTIQUE. Sophie was keen in opening a boutique. You remember? Yes. Straight off मतलब एकदम. Straight off he answered. उसने तुरंत एकदम उत्तर दिया. Earmark, पहले से निर्धारित, पहले से तय. This chair is earmarked for our principal, sir.
दिस बस इज ईयर मार्क्ड फॉर जगदलपुर, मतलब रायपुर से जगदलपुर जाने के लिए बस है। सो ईयर मार्क मतलब पहले से निर्धारित। मेलनकली, उदास, आई टोल्ड यू। विथ ए मेलनकली फेस ही केम टू मी, उतरा हुआ चेहरा लेकर वह मेरे पास आया। मेलनकली, उदास चेहरा। सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोफिस्टिकेटेड? हिंदी में भी इसका अर्थ, थोड़ा शब्द का अर्थ है परिष्कृत। सोफिस्टिकेटेड मतलब समवन हु इज सोबर, वेल बिहेव्ड, सरल, विनम्र, एंड ऑल्सो पोलाइट। पोलाइट, विनम्र, sophisticated. Then next is to scoop. To scoop मतलब निकालना। He scooped out the lemon which had fallen into water. He scooped out the lemon he scooped out the grape which had fallen into water glass. ग्लास के अंदर जो अंगूर था उसको उसने स्कूप आउट किया चम्मच से। Then next is grimy means mela and plump means gol matol. Who was plump? Father had plump cheek. Josh's father, Sophie's father had plump cheek. To stoop मतलब झुकना। इसका बहुत अच्छा उपयोग है। Don't stoop so low. इतना मत झुको किसी के सामने के गिड़गिड़ाओ। डोंट स्टूप सो लो, या इतने अनैतिक मत बनो। टू स्टूप मतलब झुकना, किसी भी रूप में झुकना, चाहे नैतिकता के रूप में झुकना और अनैतिक बन जाना, चाहे किसी के सामने अति विनम्र हो जाना, चाहे किसी से बहुत ही गलत तरीके से बात करने के पेश आना, तो इतना मत झुको। डोंट स्टूप सो लो। Incongruity, असंगति। There is incongruity in what he says today and what he said yesterday. कल और आज में उसने जो कहा है उसमें असंगति है, मिलान नहीं है। कल उसने कुछ और कहा था इस घटना के बारे में, आज वो कुछ और कह रहा है। So there is incongruity in his statement given yesterday and today. तो टिंकर मतलब किसी चीज को हल्का हल्का मारना। डोंट टिंकर विथ द ग्लास टेबल। ग्लास टेबल को टिंकर मत करो, ऐसा ऐसा जो मार रहा पट 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 सिक्के से, कॉइन से। डोंट डू दैट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू हैव इज एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब मोहक। मोहक। अब एक्सोटिक का उपयोग, इट्स वेरी एक्सोटिक टू सी दैट गार्डन। वो गार्डन जो है बड़ा मोहक है। इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली मतलब सहज रूप से। ही सेड दिस इंस्टिंक्टिवली, उसने बड़े सहज रूप से कह दिया, ना सोचा उसके पहले कि क्या बोल रहा हूं, इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, किसको बोल रहा हूं, बिना सोचे उसने सहज रूप से बोल दिया। ही सेड दिस इंस्टिंक्टिवली, अपने आप निकल गया। सो इंस्टिंक्टिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टू अपलॉज मतलब ताली बजाना। मैंने बताया आपको APPLAUSE, अपलॉज माने तालियां, और अपलॉड मतलब ताली बजाना। टू अपलॉड। वी ऑल अपलॉडेड Cassie when he scored the goal. We all applauded Cassie when he scored the second goal for his team. To frown. Frown मतलब त्योरियां चढ़ाना। आप जानते होंगे त्योरी का मीनिंग क्या होता है? अपनी भौं को ऊपर चढ़ाना, गुस्से में या अफसोस करते हुए, जिसमें यहाँ पर लाइनें आ जाती हैं, उसे कहते हैं त्योरियां चढ़ाना। Why are you frowning? Why do you keep frowning? तुम हमेशा त्योरियां क्यों चढ़ाए रखते हो? हमेशा तुम ऐसे गुस्से में क्यों दिखते हो? So that is called frown. Don't frown every now and then. जब तब तुम गुस्सा मत करो।
कंपोनेंट, वेरी कॉमन वर्ड, किसी भी चीज का पुर्जा उसे कंपोनेंट कहते हैं. कैन यू गेट मी वन कंपोनेंट फॉर दिस फैन विच इज नॉट वर्किंग? कैन यू गेट मी ए कंपोनेंट ऑफ दिस फैन विच इज नॉट वर्किंग? ये पंखा जो काम नहीं कर रहा उसका एक पार्ट ला सकते हो क्या, एक पुर्जा ला सकते हो क्या? क्रैडल मतलब झूला. मैन इज ऑलवेज बिजी राइट फ्रॉम cradle to grave. Man is always busy from cradle to grave. Man keeps crying from cradle to grave. आदमी हमेशा रोता रहता है, पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है, जब वो झूले में आता है मरते तक रोता है. तो क्रैडल मतलब झूला. राइट. नेक्स्ट इज जो उपयोगी शब्द है, टू रिगल मतलब छटपटाना. सोफी रिगल्ड, आपको याद है ना, सोफी एट सम स्टेज रिगल्ड इन द स्टोरी, छटपटाई, थोड़ा घबरा गई, नर्वस हो गई. तो WRI, तो आई समहाउ रिगल्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आई समहाउ रिगल्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन. W साइलेंट है. मैं किसी तरह इस स्थिति से निकल पाया, उसे कहेंगे रिगल आउट. किसी तरीके से निकल पाना, छटपटाना. तो शी रिगल्ड. डिसडेन मतलब घृणा. ही ऑलवेज लुक्स एट मी विथ डिसडेन. एक नफरत की नज़र से वो मुझे देखता है, घृणा की नज़र से, नफरत की नज़र से. ही ऑलवेज लुक्स एट मी विथ डिसडेन. थोड़ा सा नफरत, घृणा से ज़्यादा उचित शब्द होगा नफरत, हल्की नफरत होना. डिस्ट्रैक्शन, यू ऑल नो, ऐसी चीज़ें जो आपका ध्यान भंग कर देती हैं. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस दीज डेज चिल्ड्रन हैव. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन दैट टुडे स्टूडेंट्स हैव इज मोबाइल, जो ध्यान भंग करते हैं. तो डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भंग करना. टू बी एग्रेसिव मतलब उग्र. ही इज वेरी एग्रेसिव, वो हमेशा उग्र रहता है. डोंट बी एग्रेसिव, उग्र मत रहो, गुस्से में मत रहो, तनाव में मत रहो. जब तब मार धाड़ के जो तुम्हारी जो भाव भंगिमा रहती है उसमें मत रहो. डोंट बी एग्रेसिव, बी पोलाइट, बी सोबर. प्रोडिजी. प्रोडिजी मीन्स, मैंने आपको बताया, विलक्षण प्रतिभा वाला. आइंस्टीन वॉज ए प्रोडिजी, विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति. बिल गेट्स इज ए प्रोडिजी. नॉट ओनली इज ही ए वेरी रिच मैन, बट एट द सेम टाइम ही इज ए मैन विद ग्रेट ब्रेन्स. इंडिया हैज सीन मैनी प्रोडिजीज. भारत ने बहुत से ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले देखे. रामानुजन वॉज ए प्रोडिजी हु वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन. सिमिलरली देयर आर मैनी प्रोडिजीज. तो ऐसे कोई भी व्यक्ति को या बच्चे को हम प्रोडिजी कहते हैं जिसकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण है. एक्सेंट मतलब उच्चारण. ACCENT, एक्सेंट. उसका जो एक्सेंट है उसमें तेलुगु आता है, तेलुगु उच्चारण है. हिज एक्सेंट हैज तेलुगु टच. हिज एक्सेंट हैज इंग्लिश टच. अंग्रेजी जैसा बोलता है वो, हिंदी बोलता है. तो एक्सेंट मतलब उच्चारण. ही हैज़ ए वेरी फनी एक्सेंट. उसका जो उच्चारण है बड़ा अजीबो गरीब है. फनी मतलब अजीबो गरीब, विचित्र. ही हैज़ ए वेरी फनी एक्सेंट. उसका जो उच्चारण है, उच्चारण करता है जिस तरीके से वो शब्दों की, वो बड़ी अजीब है. पिलग्रिमेज. वैसे तो मैंने बताया पिलग्रिमेज का अर्थ धर्म, तीर्थ यात्रा. धर्म के नाम पर जो यात्रा होती है वह पिलग्रिमेज. वी हिंदूज बिलीव इन एनुअल पिलग्रिमेज. हम हिंदू लोग हर बार वार्षिक तीर्थ यात्रा में जाने में विश्वास करते हैं. मुस्लिम्स दे गो फॉर पिलग्रिमेज टू मक्का एंड मदीना. वो मुस्लिम लोग अपनी तीर्थ यात्रा मक्का मदीना के लिए करते हैं. सो पिलग्रिमेज. लेकिन यहाँ पे पिलग्रिमेज क्या है? इस कहानी में कोई तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा तो थी नहीं.
ऐसी कोई भी जगह जिसको हम पवित्र मानते हुए नियम से जहाँ जाते हैं वो पिलग्रिमेज हो गई। तो एक इडियोमेटिक उपयोग यहाँ पर है पिलग्रिमेज का, दैट फुटबॉल ग्राउंड वाज ए पिलग्रिमेज, ए प्लेस वेयर दे वुड गो एवरी टाइम। एंड पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री, पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री। सो दीज पीपल वुड गो ऑन पिलग्रिमेज एवरी सैटरडे, अपनी तीर्थ यात्रा में निकल जाते थे। उनके लिए तीर्थ यात्रा मतलब धार्मिक स्थल नहीं, फुटबॉल का ग्राउंड, क्योंकि जैसा मैंने बताया इंग्लैंड आयरलैंड में फुटबॉल के बहुत ज़्यादा दीवाने रहते हैं लोग, और एक तरीके से उनके लिए बिल्कुल बहुत ही अहम काम होता है एक फुटबॉल मैच देखना सप्ताह में एक बार। सो पिलग्रिमेज। नेक्स्ट इज एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मतलब परम आनंद। यू शुड नॉट बिकम एक्सटैटिक एट एनी ऑफ योर अचीवमेंट। तुमको परम आनंद नहीं लेना चाहिए अपनी कोई से भी अचीवमेंट में, सामान्य रहो, क्योंकि आज परम आनंद है तो कल परम दुख भी आएगा। बट एक्सटैटिक मतलब परम आनंद, ये याद रखें। यू शुड बी एक्सटैटिक अबाउट द अचीवमेंट ऑफ योर टीम, बहुत खुशी होना। पब, जैसा मैंने बताया, सार्वजनिक शराब खाना। इंक्विजिशन मीन्स इंक्वायरी, परीक्षण। डैम एक शब्द मैंने आपको बताया था, डैम विथ हिम, डैम विथ जॉफ, दैट व्हाट शी सेज सोफी। डैम मतलब बुरा भला कहना, डैम विद इट, वो जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वो जय भाड़ में, दैट इज व्हाट इज डैम। टू स्टार्टल मतलब चौंका देना, चकित कर देना, एंड टू गेट स्टार्टल मतलब चौंक जाना। द मोमेंट आई सॉ अमिताभ बच्चन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, आई वाज स्टार्टल्ड। अमिताभ बच्चन यदि मेरे बाजू में आ जाएगा तो मैं चौंकूंगा ही ना, आप भी चौंकेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं, आई वाज स्टार्टल्ड। पहली बार जब मैंने इतना बड़ा स्क्रीन देखा, सो आई वाज स्टार्टल्ड व्हेन आई सॉ अ ह्यूज स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए सिनेमा हॉल, मच मच बिगर देन एनी साइज आई हैव सीन। आई वाज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। टू स्टेयर मतलब घूरना। Why is that man staring at her? Why is that man staring at her? क्यों उसे घूर रहा है? तो टू स्टेयर मतलब घूमना। और एक शब्द और है STAIR, स्टेयर। यहाँ टू स्टेयर मतलब घूरना की स्पेलिंग है STARE, और दूसरा शब्द है STAIR, स्टेयर माने सीढ़ी, सीढ़ी के टप्पे, स्टेयर। नेक्स्ट वर्ड, एट ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर। इसके बाद अगला शब्द है एट वंस। जैसे ही मैंने उससे कुछ कहा, उसने तुरंत उसका जवाब दे दिया। ही आंसर्ड मी एट वंस, ही आंसर्ड मी एट वंस मतलब तुरंत एकदम जवाब दे देना। तो और स्पेलिंग देखिए, ONCE, वंस, एट वंस, तुरंत, एकदम। और केवल वंस का मीनिंग क्या होता है, एक बार। यू हैव मेट मी वंस ओनली, तुम मुझे केवल एक ही बार मिले हो। यू हैव मेट मी वंस ओनली। लेकिन मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वह है एट वंस, तुरंत, त्वरित, एकदम। नेक्स्ट इज अमेजिंग। अमेजिंग मतलब अद्भुत। द ब्यूटी ऑफ दैट विलेज अमेज्ड मी। उस गांव की सुंदरता ने मुझे बहुत ज़्यादा चकित कर दिया, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। अमेजिंग मतलब वंडरफुल, अमेजिंग। हिज प्रोग्रेस इज अमेजिंग। उसकी जो प्रगति है वो बहुत चकित करने वाली है, आश्चर्यजनक है, बहुत सुखद है। अमेजिंग में अच्छी भावना है। हिज परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। उसने जिस तरीके से कथक डांस किया स्टेज पर, हर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज,
her Kathak performance on the stage was amazing. बहुत कॉमन वर्ड है। ईयर मार्क करना मतलब जैसा मैंने बताया पहले से ही तय करना। फासन, टू फासन मतलब बांधना, FASTEN, फासन। फासन द नॉट, KNOT, नॉट माने गठान और फासन माने बांधना। फासन द नॉट, तो नॉट माने गठान, फासन यानी बांधना। प्लीज फासन अप द नॉट्स इन योर एप्रन। एप्रन क्या है आपको मैंने बताया इस कहानी में। एप्रन इज समथिंग दैट दे वियर इन फ्रंट। जो लोग सफाई का काम करते हैं या चौके में काम करते हैं, वेटर लोग हैं जो सामने एक कपड़ा पहने रहते हैं, उसे एप्रन कहते हैं। सो फासन मतलब बांधना। कॉर्ड मने या स्ट्रिंग मने डोरी, CORD, कॉर्ड मने डोरी, स्ट्रिंग मने डोरी, रस्सी, डोरी। क्रुकेड मतलब झुका हुआ, टेढ़ा, और झुका टेढ़ा मेढ़ा झुका, टेढ़े मेढ़ा झुके हुए को क्रुकेड कहते हैं। टू पाइल अप, टू पाइल अप मतलब इकट्ठा करना। हे यू हैव पाइल्ड अप लॉट ऑफ वर्क, तुमने बहुत सारा काम इकट्ठा कर लिया भाई। वाई सो मेनी फाइल्स आर पाइल्ड अप ऑन योर टेबल, आपकी टेबल पर इतनी सारी फाइलें क्यों इकट्ठी हो गई हैं। आई डोंट बिलीव इन पाइलिंग अप वर्क, मैं काम को इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करता। तो याद रखेंगे बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट वर्ड है टू पाइल अप मतलब इकट्ठा करना। देयर आफ्टर टू टाइटन मतलब जकड़ना। आई हैव टाइटन द नॉट, मैंने नॉट को बहुत अच्छे से खींच दिया है। नॉट माने गठान। आई हैव टाइटन द स्क्रू, मैंने स्क्रू को बहुत टाइट कर दिया है। टू टाइटन मतलब टू मेक इट टाइट, TIGHTEN, टू टाइटन।